So, good morning to all. Uh, as we have already discussed at length about different modes of online or ICT mediated teaching learning processes, today my focus will be basically based on whatever kind of the media you will use, whatever kind of the instruction you will develop, all these instruction needs to be developed in a systematic manner. Then only this ICT will helpful for the effective teaching learning process. So my today's talk will be based on how to design instructional media, because whenever we use any type of instructional media or any type of instruction or any type of teaching, we need to require effective planning as well as a proper strategy to design our instructional media. In case of online teaching, it is very much important because you are talking to your remote learner, the learners who are not before you, and you have to plan in such a manner that every learner should get as per his own need. Then always a question comes ki how a learner can get, as each and every learner can get the kind of instruction he requires. So the very simple answer is that today I'm going to discuss and giving you answer of that question only, ki how we can accommodate each and every type of learner in our instructional module or in our online teaching process. So let us begin with my today's presentation. And as I always believe in discussing the ideas, so let us discuss some ideas, because I think that yesterday we have discussed at length about the various modes and various methodology. But today my focus will be on how to design. What are the basic principles of designing in ICT based instructional material? That will be the my focus. So I always believe that, okay, let us discuss ideas, because we all are teachers, and I feel that we are the strong mind. So let us discuss ideas, because ideas are the currency of success. जब तक आप आइडियाज को डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक आपको उसके बारे में ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएंगी. So this is the only way, or we can say that ideas are the currency of success. They separate us from our own competition. So let us discuss some ideas about how to design instructional media. So before going for that, let us discuss about the instructional system design. What I'm going to focus today is instructional system design and designing of instructional media for different types of learners. Because as we all aware that we have different types of learner in our classroom. Some learners are, we can say that high achievers, some are mediocre, some are the poor in their academic performance. Another important aspect, some learners are suffering with some kind of learning disability or some kind of they are lagging behind in their academics. So how to accommodate all these kind of learners, and especially in case of when you use the ICT based teaching learning process or ICT mediated instruction design, then there may be possibility that learner may draw a wrong conclusion from your this module. So for keeping all these things in mind, we have to be very focused in designing our instructional module. So in the next some days, you are going to learn the different media, different platforms where you have to design different kind of instructional module. As madam is also telling you that I just now I heard that she is telling you that whatever you will learn, the site on that site only you have to develop your module. But the question comes is, do we able to develop module whatever site or like ICT tool we are using in a without proper planning? No, of course the answer is no. We need to plan systematically. हमको बहुत systematically plan करना होता है, तभी हमारे मॉड्यूल इफेक्टिव होते हैं और तभी हमारे लर्नर को वो बेनिफिट करते हैं. क्योंकि हम सभी ने ये चीज विटनेस की है कि इंटरनेट के ऊपर कितने ही प्रकार के मटेरियल अवेलेबल हैं, और जब हम उनको सर्च करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस अलग हो जाता है और हम कुछ और चीजों में उलझ जाते हैं और हमें अपने काम की चीज नहीं मिलती है. तो द वेरी सिंपल रीजन फॉर दैट इज कि that whatever the content is available on internet, it is not planned systematically, it is not developed by teachers in a systematic manner. That's why the information is not very focused. So as a teacher now, what is our role? Of course, तो n नंबर ऑफ, यदि बहुत सारा मटेरियल नेट पर अवेलेबल है, तो क्या हमारे को अपना खुद का मॉड्यूल डेवलप करने की जरूरत है? यस,
हमें अपना खुद का मॉड्यूल डेवलप करने की बिल्कुल जरूरत है, तभी हम उस कंटेंट को फोकस तरीके से अपने लर्नर तक पहुंचा पाएंगे और हमारा लर्नर इन एक्चुअल टर्म पे बेनिफिट होगा. Because in this world of ICT, everybody is thinking that this information and communication and distance education will replace teacher. No, teacher cannot be replaced by the technology. The only thing is that teacher has to use systematically this technology, so they will be in the central theme and they can design their own learning content. So keeping this background in mind, today I'm going to discuss before you how to design instructional system and how we can accommodate all different types of learners in our teaching learning process. So, overview of my today's presentation, I'll discuss with you some basic terms which is very important to understand before designing any instructional media. Then I'm going to discuss with you what is instructional system design and its process. Then different models of instructional system design, which is suggested by various persons, those who are expert in the field. And the next part, the last will be how to accommodate different kind of learners, so instructional design for different kind of learners. So I'm going to discuss these three basic 5 points, which is important for every teacher to understand and develop their module based on that fundamental principles only. So first question, whenever we design any instructional module, any teaching learning material, a first question comes in our mind that for what we are designing this. हम ये सब डिजाइन किसके लिए कर रहे हैं? The answer is of course student learning. So let us understand that what learning means. So my question to all of you, just think that what is learning? Learning means change of behavior. So what does it mean? कि यदि कोई भी लर्निंग होती है तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा मतलब है कि जैसा हम पहले जानते थे उससे ज्यादा जानने लगते हैं. We know more than before. We can do things better than before. जिस तरीके से हम चीजें करते थे उससे अच्छे तरीके से हम चीजों को कर पाते हैं. देन हमारे जो ओपिनियन है वो भी चेंज होते हैं, क्योंकि जब भी कभी लर्निंग होती है तो हम जो जिस किसी चीज के बारे में कुछ सोच रहे थे तो सम टाइम दैट ओपिनियन भी चेंजेस होते हैं. सो ऑल ऑफ अस विच अलाउज अस टू बिहेव डिफरेंटली देन बिफोर. तो बहुत सीधा सा मतलब है कि लर्निंग का मतलब है कि यदि छात्र की लर्निंग प्रोसेस होती है तो उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है बाय बिकॉज ही विल बी एबल टू नो मोर देन वॉट एवर ही वाज नॉलेज इनहांस होता है. उसकी जो चीजें जिस तरीके से वो करता है वो भी बेहतर होती है, मतलब उसकी स्किल्स भी डेवलप होती है और उसका एटीट्यूडनल चेंजेस भी होता है. सो वेरी सिंपल मीनिंग ऑफ द एनी लर्निंग इज द इंक्रीज इन नॉलेज, increase in skills and increase in attitude. So all these things togetherly we can say that it is learning. So as a teacher हमारा मतलब क्या होगा? As a teacher हमारा पर्पस है कि मैक्सिमाइज स्टूडेंट लर्निंग. अब जब स्टूडेंट की लर्निंग को मैक्सिमाइज करना है तो एज ए इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइनर, use of ICT in teaching learning process, of course we have to design our module keeping in all these three fundamental aspects, that is increase in knowledge, increase in skill, and change of attitude or behavior. So learning means change of behavior due to change of knowledge, increase in knowledge due to increase in skills, and due to attitudinal changes. All these togetherly form a new pattern of behavior. So जब भी कभी learning होती है हमारे behavior का modification होता है. Is it okay for you? So let us go ahead. That is the basic meaning of learning. Now, what is the purpose of knowing this learning? Of course, as a teacher, we have to design our instruction in such a manner so that students' knowledge will be enhanced, student skills will be developed, and his attitude will be changed. So we will learn a new pattern of behavior. Now, learning means development of knowledge, skill, and attitude. That means permanent change in behavior of the learner. That is the basic meaning of any learning. So if I talk to you about how this learning process takes place, so basically learning process involves 4 major steps. कौन कौन सी वो 4 मुख्य अवस्थाएं होती है? एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों से मेरा, because I always believe in discussion and interaction. So a little bit instruction I needed that कि आज सुबह से जब आप पढ़ने के लिए आए तो आपके साथ क्या क्या नई चीजें क्या क्या हुआ? Can anyone will be able to give me answer of this question?
See, I need an interactive session, then only I'll be able to get feedback from you. So जब आज सुबह से लेकर के आप अभी तक क्लास तक आए हैं, आपके साथ क्या हुआ? Anyone please? Am I audible to you? Yes, Ma'am, madam. we have done different form of yogas, and we understand the importance of yoga in Okay. our daily lives, and Okay. the exchange and the flexibility of the body. The main Okay. focus Okay. is Okay. So one answer is that you learn yoga. Okay. Yes. Anybody else? Anybody else? Anybody else who could remember? No one? Everybody has experienced something new. आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी. Please. I'll explain you that कि कैसे हम कैसे learning हुई. No one? Hey, am I audible? सुनाई पड़ रहा है सबको? Yes, Yes, madam. ma'am, you are audible. हाँ तो please let me know क्या हुआ सुबह से. Anyone? Someone says उन्होंने योगा सीखा और कोई? Anything you may find that silly, but let me to know that. Yes, please. Yes, Dr. Kadri, you want to say anything? Yes, madam. Just we have done the in morning walk. After that, we have done the yoga, and then after I have some reading the newspapers and now attending the lectures. Okay. Which new See, things is not happens here, no? yes. So see one thing. Every day something happens. Yoga. Is it not your routine? आपने बोला morning walk किया. Morning walk is your routine. But Yes. yoga is not your routine. So you Yes. have experienced something new. Yes, Right? madam. आपको कुछ नया experience हुआ. That was your yoga class. So you have Yes. experienced something new. Then you try to appreciate and understanding that new experiences. As madam has already told that उन्होंने बहुत सारी चीजें उस योगा में सीखा. Then वो जो नया experience आपके साथ में आया, वो आपकी memory में store हुआ. और जब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आपको immediately क्या रिकॉल हुआ कि yes, today you learned yoga. So the same manner this happens. अभी एक छोटी सी बात करूं, आज यदि कोई योगा क्लास नहीं होती और कुछ भी नहीं होता तो आपको आपका रूटीन एकदम रिकॉल नहीं होता है. क्यों? क्योंकि जो हमारे लर्निंग की प्रोसेस है उसमें जो रूटीन एक्सपीरियंसेस हैं, जो चीजें हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, वो चीजें फिर से हमारे मेमोरी में स्टोर नहीं होती हैं. जब भी हम कोई नई चीज एक्सपीरियंस करते हैं, जब भी हम कोई चीज रूटीन से हट के अलग एक्सपीरियंस करते हैं, वो चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जब हम डेली अपने गाड़ी को चला करके अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि सिग्नल के ऊपर कोई चीज हमको वर्क प्लेस तुरंत हमको रिकॉल होती है कि यस, जब मैं सुबह से घर से वर्क प्लेस तक आया था तो मुझे एक बहुत ज्यादा या तो सिग्नल बंद मिला, या हो सकता है कोई बहुत ज्यादा बारात आई चल रही हो, कोई बहुत बाजा हो रहा हो. ये सारी चीजें क्या है, वो हमारे रूटीन एक्सपीरियंसेस से डिफरेंट है. हमें ये याद नहीं रहता कि हाउ मेनी सिग्नल्स हमने क्रॉस किए, लेकिन किसी सिग्नल के ऊपर कोई प्रॉब्लम हुई तो हमको इमीडिएटली वो रिकॉल होता है. वाई? बिकॉज दिस विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस. और जब भी वो न्यू एक्सपीरियंस हमारे सामने आता है, हम उस न्यू एक्सपीरियंस को अप्रिशिएट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाता है. जब भी हम उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, वो इमीडिएटली रिकॉल होता है. तो एज अ टीचर व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि हम यदि रूटीन तरीके से क्लास में जा करके या रूटीन रूप से एक फाइल उनके सामने खोलने को बोलेंगे तो स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू रिकॉल इट. हमको हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस समथिंग इस तरीके से देना चाहिए जो कि इनोवेटिव हो, जो कि नॉवेल हो. सो दीज आर द 4 स्टेजेस हैं जो हर लर्निंग की एक बेस होती है. एक्सपीरियंसिंग समथिंग न्यू, appreciating and understanding these new experiences, storing these new experiences in our memory, and whenever you recall, it can be recalling it later. So this is the 4 simple steps of learning. और यही 4 steps of learning हमारे instructional design का base बनता है. So what learning is? Learning is an active process in which learner construct their own meaning based on their prior knowledge and experiences. कोई भी लर्निंग ऑल ऑफ ए सडन नहीं होती. जब भी हम कोई लर्निंग करते हैं तो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के साथ उनके कनेक्शंस होना चाहिए.
व्हाट डज इट मीन एज अ टीचर? कि जो भी बच्चों को प्रीवियसली नोन कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को बेस बना करके, उन कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम्पल के रूप में लेकर के हमें नए कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना होता है. सो एवरी लर्निंग हैज सम connection of old knowledge to new knowledge is very important. So learning is an active process in which learner constructs their own meaning based on prior knowledge and experiences. जो भी उसका पूर्व ज्ञान है, जो भी उसके पूर्व अनुभव है, उसी के साथ वो उसको हुक करता है, उसी के साथ उसको वो लिंक करता है, तभी वो नई चीज सीख पाता है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है लर्निंग के लिए. देन लर्निंग का मतलब होता है कि ईच ऑफ अस जनरेट रूल्स टू मेक सेंस ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस. हम हर व्यक्ति अपने एक सिद्धांत बनाता है, अपने एक प्रायर एक्सपीरियंसेस के आधार पर उसकी लर्निंग होती है. तो लर्निंग इज एडजस्टिंग आवर रूल्स टू अकोमोडेट न्यू एक्सपीरियंसेस. इसीलिए कल भी शायद आपको याद होगा कि मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब हम एक नया मोबाइल खरीदते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं तो एज ए एडल्ट हमको थोड़ी डिफिकल्टी होती है, जबकि हमारे यंग चिल्ड्रन जल्दी से सीख पाते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सपोजर है वो उस एक्सपोजर के साथ वो नए एक्सपीरियंस को लिंक करते हैं और जल्दी से उस चीज को अकोमोडेट कर लेते हैं. सो व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग इज बेसिकली मीनिंग ऑफ एडजस्टिंग आवर रूल्स टू अकोमोडेट नए एक्सपीरियंसेस को अकोमोडेट करना है. स्टूडेंट कैन लर्न डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द सेम लेसन. ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप एक ही चीज को बताएं. और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. आप जब भी अपनी क्लासरूम में जाएंगे और कोई कॉन्सेप्ट बच्चों को एक 3 मिनट का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाइए और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए क्लास के हर बच्चे से उसका मीनिंग पूछिए. यू विल गेट एन नंबर ऑफ मीनिंग और उसमें कई बच्चे एक अलग ही मीनिंग निकालेंगे, कोई सही बताएगा जिस तरीके से आप कॉन्सेप्ट डिलीवर करते हो. तो बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है कि ये कहता है कि हर व्यक्ति हर एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से मीनिंग निकालता है बेस्ड ऑन हिज प्रायर एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन हिज प्रायर लर्निंग. ओके, सो नो नॉलेज, इसका मतलब क्या हुआ? नो नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड इंटेक्ट फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर. एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जब आप नॉलेज को ट्रांसफर करने जाएंगे तो वो कभी भी इंटेक्ट नहीं जाता है, उसके मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं. और वो अलग अलग मीनिंग होने का कारण क्या है? हर लर्नर का प्रायर एक्सपीरियंसेस, हर लर्नर का बैकग्राउंड डिफरेंट है, उसका परसेप्शन डिफरेंट है, और वो डिफरेंट परसेप्शन होने के कारण हर व्यक्ति अपने तरीके से उस चीज को का मीनिंग निकालता है और वो दूसरे तक ट्रांसफर करता है. तो इसीलिए ये कहा जाता है कि नो नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड इंटेक्ट फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर. ओके, सो माय क्वेश्चन इज वन ऑल ऑफ यू टू, व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग का मतलब क्या है? कैन एनीवन विल एबल टू गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट इज टीचिंग? व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग? अभी तक मैंने आपके साथ लर्निंग की बात करी थी, अब टीचिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज टीचिंग? एनीवन? यस प्लीज. एनीवन? Hey, I need an interactive session, please. आप लोग बोर नहीं होते हैं क्या जब तक इंटरेक्शन नहीं करेंगे? मैडम टीचिंग to the student to understand the phenomenon. टीचिंग इज द प्रोसेस टू अंडरस्टैंड फिनोमिनन. ओके, और कोई? और कोई? हाउ टू अंडरस्टैंड दैट फिनोमिना? एज ए टीचर हमको लगता है कि टीचिंग मीन्स to explain some things, हाँ, to ओके, give some skills. fine. To explain something, to gain something, and a simple Ah. meaning to impart knowledge. Am I right? Yes. Okay. Okay. Then another meaning is to provide education, isn't it? यही है ना? आप जो बोल रहे हैं उनको explain करना, to provide education, but learner Yes. doesn't want that. But as a learner, they don't want these things. We don't need lectures to learn. Then टीचर्स, हम एज ए टीचर हमें ऐसा लगता है कि वी हैव अ स्फीयर ऑफ नॉलेज, हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है एंड वी वांट टू इंसर्ट इनटू द माइंड्स ऑफ देयर स्टूडेंट. एम आई राइट? ये एक कॉमन मेटाफोर है हमारे बीच में एज ए टीचर की. हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स को हम स्टूडेंट को के दिमाग में डालना चाहते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक. As a teacher, one of the basic things कि teachers have a sphere of knowledge and they want to insert into the minds of their
स्टूडेंट। इसीलिए हम उनको नॉलेज दे रहे हैं, हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि उनको चीजें उनके दिमाग में घुस जाए, उनको वो चीजें समझ में आ जाए। सो यू मे बी एग्री दिस, ट्रेडिशनली टीचर्स प्रेजेंट नॉलेज टू पैसिव स्टूडेंट। हम जनरली क्या करते हैं, हम अपने स्टूडेंट के सामने एक नॉलेज क्रिएट करते हैं। ट्रेडिशनली टीचर्स प्रेजेंट नॉलेज टू पैसिव स्टूडेंट who absorb it, no wonder student are often bored. जब भी हम क्लास में जाते हैं, केवल लेक्चर देंगे, केवल एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो स्टूडेंट विल गेट बोर। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि कहीं ना कहीं हमको अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिविटीज को डालना है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा एक्टिविटी डालना है जिससे स्टूडेंट एक्टिव होकर के उसमें पार्टिसिपेट कर सके। सो बेसिकली द मीनिंग ऑफ टीचिंग इज to remain a student, to keep a student active throughout the teaching learning process. अब आपके सबके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि my content is a theoretical content, how can I keep my student active throughout the teaching learning process? मैं अपने 45 मिनट के लेक्चर में अपने स्टूडेंट को कैसे एक्टिव रखूं, कैसे उसको हर बार एक्टिविटी देती रहूं? ये पॉसिबल शायद बहुत सारे टीचर्स को लगता होगा कि नहीं है, और इन केस ऑफ रिमोट लर्नर ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट। ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि ये भी बहुत डिफिकल्ट होगा। सो लेट अस गेट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि हाउ आई कैन मेक माय स्टूडेंट एक्टिव थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग process. The purpose of designing this instructional media is the same only to make the teacher a student active learner. क्योंकि हम कितना भी किसी को पढ़ाएं, जब तक सीखने वाला सीखने के लिए रेडी नहीं होगा, आपके टीचिंग का कोई मतलब नहीं होता है। सो कब रेडी होगा? जब हमारे लर्नर को उसकी नीड सेटिस्फाई होगी, तभी वो हमसे सीखने के लिए तैयार होता है। तो बेसिकली इन सारी चीजों को समझने के बाद एक चीज हमें समझ में आती है कि व्हाट इज टीचिंग। टीचिंग मीन्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस that are facilitated by a human being or actual teacher. That means we should facilitate the learning by providing different kind of learning experiences to our learner to make them active throughout the process. पूरी प्रोसेस में यदि हमको अपने लर्नर को एक्टिव रखना है, तो हमको इस तरीके के लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिए जाने चाहिए जिससे उनकी लर्निंग को हम फैसिलिटेट कर पाए, जिससे हम उनको थ्रू आउट लर्निंग प्रोसेस में इंगेज रख पाए। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एनी टीचिंग। देन एक और शब्द हमारे सामने आता है कि इंस्ट्रक्शन, बिकॉज आई एम टॉकिंग टुडे इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइनिंग दैट इंक्लूड टीचिंग, instruction and development of skills also. So let us understand that what is instruction. Instruction means intentional facilitation of learning towards identified goals. Instruction का मतलब होता है कि हमारे सामने प्री आइडेंटिफाइड गोल है और उसके हिसाब से हम उनकी इंटेंशनली हम उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं थ्रू अ वेल डिफाइंड गोल. दैट मीन्स पर्पसफुल एक्टिविटी intended to cause, guide और support learning. इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एक वो एक्टिविटी जिससे स्टूडेंट की लर्निंग को सपोर्ट हो सके, उनको हम गाइड कर सके और हम उनको एक एक्टिव लर्नर में कन्वर्ट कर सके. ओके, नाउ अनदर टर्म आता है स्किल डेवलपमेंट. जैसे मैंने आपको बोला नॉलेज का इन्हांसमेंट होना चाहिए, उनका स्किल की इन्हांसमेंट भी होना चाहिए. और जब भी स्किल इन्हांसमेंट की बात करते हैं हम वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेनिंग. सो व्हाट इज ट्रेनिंग? स्किल इन्हांसमेंट मतलब ट्रेनिंग ही होता है. और ट्रेनिंग कैसी होना चाहिए? तो ट्रेनिंग का बेसिक मतलब होता है इंस्ट्रक्शनल एक्सपीरियंसेस दैट आर फोकस्ड on individuals acquiring very specific skill that will be likely to apply it almost immediately. The moment you learn any skill, you will be able to apply it. तो बहुत सीधा सा मतलब है कि जब भी कोई ट्रेनिंग होती है, जैसे एक सिंपल सा लेट अस टेक वन एग्जांपल कि यदि हम कोई फुटबॉल के कोच हैं, तो कोच क्या करता है? फुटबॉल को हैंडल करने की स्टूडेंट को ट्रेनिंग देता है. द मोमेंट स्टूडेंट सीख रहा है, वो फुटबॉल को हैंडल करना, किक मारना या जो भी उसने ट्रेनिंग दी है वो उसको सीख करके इमीडिएटली अप्लाई करना शुरू कर देता है. ट्रेनिंग कब तक खत्म नहीं होती? जब तक स्टूडेंट उसको अप्लाई ना कर सके. दैट मीन्स instructional experiences that are focused on individual acquiring a specific skill. जब तक स्किल अक्वायर नहीं होती तब तक हमारी ट्रेनिंग खत्म नहीं होती है. और वो जैसे ही स्किल अक्वायर होती है
स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई इट इमीडिएटली, तुरंत उसको अप्लाई कर सकता है। सो इसका मतलब we have till now we have discussed 3 terms: teaching, instruction and training. इन तीनों टर्म को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन करते हैं तो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम इज द अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब जो मैं आपसे फोकस कर रही हूँ कि सपोज यू हैव टू डिजाइन अ मॉड्यूल, जैसे अभी आपको प्रीति मैडम ने बोला कि यू हैव टू सबमिट अ मॉड्यूल, तो मॉड्यूल सबमिट करना है, मॉड्यूल डिजाइन करना है, तो उस मॉड्यूल को डिजाइन करते समय आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिसोर्सेज को अरेंज करना पड़ेगा और इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा जिससे स्टूडेंट की लर्निंग को आप प्रमोट कर सकें। सो व्हाट इज द अरेंज इंस्ट्रक्शनल सिस्टम? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपके शायद हो सकता है आपको आपके लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स टीचिंग करना पड़ेगी, आपको उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी डालना पड़ेंगे, प्लस आपको उसमें एक्टिविटी भी डालना पड़ेगी। सो एनी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन सिस्टम इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीचिंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, वेयर we arrange the resources and procedures in such a manner so that student will be able to learn. To promote students learning, we try to arrange our resources, we try to arrange our procedures in such a manner so that there will be a combination of teaching, instruction and training. Okay, so let us go ahead कि तीसरा जो टर्म आता है वो आता है डिजाइन। Now what is design? डिजाइन का मतलब होता है ए प्लान और ड्राइंग प्रोड्यूस टू शो द लुक और फंक्शनिंग ऑफ वर्किंग ऑफ समथिंग। यदि हमको कोई प्रोसेस बनानी होती है, कभी कोई चीज डिजाइन करनी होती है, तो हम ये सोचते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें होंगी, उसका आउटलुक कैसा होगा, ये सारी चीजें एक प्लानिंग का पार्ट आती हैं। तो जब भी आपको कोई इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन करना होता है, सबसे पहले आपको ये प्लान करना होगा कि मैं किस टाइप का इंस्ट्रक्शन सिस्टम डिजाइन कर रही हूँ, करने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको कल 3 तरीके के बताए थे, एक मोड बताया था मैंने आपको कोलैबोरेटिव लर्निंग, दूसरा मैंने आपको बताया था सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, और तीसरा मैंने आपको बताया था ब्लेंडेड लर्निंग। तो आपको ये डिजाइन करना, प्लान करना है कि आप किस तरीके का इंस्ट्रक्शन सिस्टम डिजाइन करने वाले हो, वेदर यू आर ट्राइंग टू डिजाइन अ ब्लेंडेड लर्निंग टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सिस्टम, whether you want to design a self-directed learning type of system, whether you want to design a collaborative learning type of system. Now let us revise that what these 3 type of, when I say that blended learning, that means do you want to design a lecture or a system of instruction in which you want to provide some instructional material plus your face-to-face teaching? Are we planning for that? That you have to think. Then self-directed learning, in which no need of teachers face-to-face instruction or the real-time conferencing. The learner himself interact with the instructional material and design and learn from your design module. In such case, you have to design a module in such a manner where student only interact with the module and learn. Then third category is collaborative, in which you have to design in such a module in such a manner that the student learn by their own efforts in the form of a group, and they will interact with the module and they will learn by personal experiences, by experience of their classmates, by experiences of their peers, by collaborating with you also they will learn. So that is 3 module of designing है, और ये तीनों तरीके के मॉड्यूल जो आप प्लान कर रहे हैं उसके लिए आपको एक डिजाइन बनाना पड़ेगी, उसके बारे में आपको एक प्लान करना जरूरी होता है। सो डिजाइन का मतलब होता है ए प्लान और ड्राइंग प्रोड्यूस टू शो द लुक और फंक्शनिंग ऑफ वर्किंग ऑफ द सिस्टम, कि आपका सिस्टम कैसे वर्क करेगा। देन स्ट्रक्चरल सिस्टम डिजाइन का बेसिक पर्पस क्या होता है? सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इंस्ट्रक्शनल सिस्टम इन विच टीचिंग भी होगा, इंस्ट्रक्शंस भी होंगे और ट्रेनिंग भी होगी। दैट मीन्स आपके मॉड्यूल में ये तीनों चीजों की जरूरत होगी, तभी आपका मॉड्यूल सबके लिए इफेक्टिव हो पाएगा। ओके, नाउ अब एक क्वेश्चन आता है कि मुझे एक इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन करना है, तो मुझे क्या क्या चीजों के बारे में डिजाइन करना होगा? देन आई हैव टू प्ले अ रोल ऑफ अ डिजाइनर। तो मुझे क्या क्या चीजें डिजाइन करनी है? तो सबसे पहला है कि मैं क्या क्या उसमें मुझे इंस्ट्रक्शंस देना होंगे, कौन कौन से, जिस इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है टू प्रोवाइड सम एक्टिविटीज टू लीड टू अ डिजायर्ड गोल। तो वही मेरा पर्पस होगा कि मेरे को इंस्ट्रक्शंस भी डिजाइन करना पड़ेंगे,
मुझे एजुकेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज करना पड़ेगा, मुझे अपने क्यूरिकुलम को भी इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा. देन combining this instruction and technology, I have to design a instructional, I have to play a role of a instructional technologist also. तो चारों प्रकार के रोल एक टीचर को प्ले करना होते हैं. पहला प्ले होगा इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर, एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट, क्यूरिकुलम डिजाइनर और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजिस्ट का भी रोल प्ले करना होता है. तो सभी के दिमाग में बात आ रही होगी कि हाउ वी विल प्ले दिस रोल, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट. So let us discuss that idea only, how you become an instructional designer, how you will become an educational technologist, how you will make your curriculum effective, how you will make instructional technologist. So a designer का role क्या होता है? A designer is someone who create and devises educational training material for higher education institution, all schools or any other organizations. A designer develop the methodology and delivery system फॉर प्रेजेंटिंग कोर्स कंटेंट. बहुत सीधा सा मतलब है एज ए टीचर के हमको अपने कोर्स कंटेंट को स्टूडेंट को प्रेजेंट करना है, स्टूडेंट के सामने देना है, उसको प्रेजेंट करना है, उसको उसके तरफ तक हमारे कंटेंट को पहुंचाना है. अब हम कैसे पहुंचाएंगे? हम उस कंटेंट को किस प्रकार से उसके सामने प्रेजेंट करें जिससे वो एक्टिविटी के रूप में एक्टिव लर्नर भी रह सके, उसको राइट इंस्ट्रक्शन भी मिले और वो उससे कुछ ना कुछ सीख सके, जिससे उसका नॉलेज भी इन्हांस हो, जिससे उसकी स्किल्स भी डेवलप हो और जिससे उसके एटीट्यूडनल चेंजेस भी आए, तो उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन भी हमारा एम होना चाहिए और है ही. तो ऑफ कोर्स अ डिजाइनर हैज टू डेवलप द मेथोडोलॉजी एंड डिलीवरी सिस्टम फॉर प्रेजेंटिंग कोर्स मटेरियल को सिस्टमेटिक प्रेजेंट करने के लिए हमको एक मेथोडोलॉजी और डिलीवरी सिस्टम को डिवाइस करना होगा. तो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन का मतलब होता है अ सेट ऑफ इवेंट्स दैट फैसिलिटेट लर्निंग. वो इवेंट जिससे हमारे स्टूडेंट की लर्निंग को फैसिलिटेट हो. और हाउ टू सेट दिस इवेंट? अ क्रिएटिव पैटर्न और ए रेशनल लॉजिकल सिक्वेंशियल प्रोसेस इंटेंडेड टू सॉल्व प्रॉब्लम. अ सिक्वेंशियली प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने कंटेंट को सीक्वेंस के रूप में प्रेजेंट करते हैं जिससे हमारा स्टूडेंट सिस्टमेटिक मैनर में उस चीज को समझ पाए. ओके, तो नाउ सबसे पहले जब भी हम हमारे स्टूडेंट को कोई भी इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन करना होता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है कि डिसाइड व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट टू लर्न. ये सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज है कि जो भी आज आप सिखाने जा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है जो मेरे स्टूडेंट को सीखना जरूरी है. ये दिमाग में जो भी कंटेंट है आपके पास में, whether you are a history teacher, whether you are a teacher of a political science, whether you are a science teacher, whether you are a teacher of biology, whether you want to teach them a plant system or zoology, whatever teacher you are, you have whatever content you have pick up, you have to first of all ये सीखना पड़ेगा कि इस कंटेंट को पढ़ने के बाद मेरे बच्चों के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो उनको समझ में आना चाहिए. So decide what is important for the student to learn. ये हर टीचर को करना जरूरी है, तभी आपका इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन हो पाएगा. Then effectively arrange the learning environment to maximize students learning. Whatever you have planned कि ये चीज इसमें इम्पोर्टेंट है और इस इम्पोर्टेंट चीज को पढ़ाने के लिए मेरे को कैसा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. जैसे बहुत सीधी सी बात है कि हर कंटेंट को हम एक ही तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं. सपोज करो कहीं कहीं हमको लेबोरेटरी एक्सपीरियंसेस इंक्लूड करना होते हैं, कहीं कहीं हमको फील्ड में ले जाना होता है, कभी हम इनको क्लासरूम में केवल लेक्चर से भी पढ़ा सकते हैं. तो कॉम्बिनेशन कंटेंट के हिसाब से आपको ये तीनों चीजों को कॉम्पिटेंट तरीके से कंबाइन करना होगा, तभी आप सही लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट कर पाते हैं फॉर योर लर्नर. ओके, सो एज एन इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर you have to play a many roles. First thing is that is से पहले आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होगी. सो क्या कंटेंट है, उस कंटेंट में क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस कंटेंट का कहाँ उन इम्पोर्टेंट पॉइंट का चाइल्ड कैसे यूज करेगा. सो हियर यू हैव टू प्लान सिस्टमेटिक थिंकिंग प्रोसेस करके उसके बाद आपको डेटा एनालिसिस करना पड़ेगी, ऑल दीज एक्सप्लोर करना पड़ेगा, प्लस आपको इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजीज भी डिसाइड करना पड़ेगी.
आपको कम्युनिकेशन कैसे करेंगे हम, क्या हम वर्बली बताएंगे, क्या हम उसको एक्टिविटी प्लान करके बताएंगे, हम कैसे उसको एक्टिव रह पाएंगे, हमारी डिजाइन कैसी होगी, ऑल थिंग्स हैज अ मेनी रोल एज इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर हैज टू प्ले। ये मैं आपको थ्योरेटिकल बता रही हूँ कि ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप एक सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन सिस्टम को डिजाइन कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, जो कि मैं आपको आपके साथ आज एक्सप्लोर करेंगे हम लोग कि हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आता है कि हमने हमारे पर्पस को डिजाइन कर लिया, हमने अपने थिंकिंग करके हमको क्या प्लान करना है वो हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद हमको उस कंटेंट को कौन से मीडिया को यूज करना है। मीडिया का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट द लर्निंग कंटेंट टू द लर्नर। आप कैसे उसको कराएंगे, फेस टू फेस टीचिंग करेंगे, ऑन स्क्रीन टीचिंग करेंगे, या आप कोई वीडियो क्लिप बनाएंगे, या आप कोई पीडीएफ फाइल बनाएंगे, आप कौन सा, आप क्या आप मोबाइल डिवाइस के थ्रू यूज करें, क्या आप कौन सा मीडिया के थ्रू यूज करेंगे, जो अभी आप नेक्स्ट सेशंस में आप बहुत सारी चीजें समझने वाले हो कि वो मीडिया में आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करोगे, वेदर यू आर यूजिंग अ गूगल प्लेटफॉर्म, वेदर यू विल बी यूज एनी अदर डिवाइस, वॉट एवर यू विल लर्न, वो आपका मीडिया होगा। मीडिया का सिंपल सा मतलब है कि कौन सी टेक्निक, कौन सी टेक्नोलॉजी का आप प्रयोग करेंगे जिससे आपके कंटेंट को स्टूडेंट तक आप पहुंचा पाएंगे। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जैसे ही आपका कंटेंट डिसाइड होता है, उस कंटेंट को सबसे प्रभावी तरीके से स्टूडेंट तक कौन से माध्यम से आप पहुंचाएंगे, ये आपको डिसाइड करना होता है। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डिसाइड what is important for my student to learn. Then second thing, which type of media should I select for my student. Then so there are certain stages of instructional system design. उन stages को मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी, बट लेट अस हैव अ ब्रीफ लुक अभी तक हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, देन टीचिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है, देन वी हैव डिस्कस्ड एट लेंथ अबाउट डिफरेंट टर्म्स, टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, देन ट्रेनिंग, ये सब क्या है, एज ए डिजाइनर आपको क्या क्या रोल करना होता है। देन before planning of your any instructional system designing, you have to think that what content I have to take and what is important in that content. So let us understand one by one what are the different stages of instructional system design. क्योंकि जब भी हमको एज ए सिस्टम डिजाइनर के रूप में काम करना होता है, जब भी हमको एक टीचिंग करनी होती है, तो हम बिना प्लानिंग के सिस्टमेटिक टीचिंग नहीं कर पाते हैं। तो क्या क्या स्टेजेस से हमको गुजरना होता है, ये कोई बहुत डिफरेंट स्टेजेस नहीं है, इट इज सिमिलर टू टीचिंग, बट हाउ विल कन्वर्ट इट इनटू अ डिजाइनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम. So the first stage is identify instructional goals that we call conduct need analysis. नीड एनालिसिस कंडक्ट करने का मतलब कि मेरे द्वारा मेरे को अभी स्टूडेंट को कि व्हाट आर देयर बेसिक बैकग्राउंड, what new thing I want to give them, that we call a gap analysis. So step 1, perform a gap analysis to understand current skill and knowledge. बहुत सीधी सी बात है, जब भी हम कक्षा में पढ़ाने जाते हैं, फेस टू फेस पढ़ाने जाते हैं, सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि अभी तक स्टूडेंट को क्या आता है। सपोज करो मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अभी आपको पढ़ाना है, ओके मिस्टर कादरी, आपको आज पढ़ाना है, क्या होगा आपके दिमाग में क्वेश्चन? सबसे पहले आप क्या पूछेंगे मुझसे? एनीवन प्लीज? टॉपिक कौन सा रहेगा पढ़ाने का? ओके, टॉपिक। और क्या पूछेंगे फिर आप? फिर क्या पूछेंगे? यस प्लीज। कौन सी क्लास को पढ़ाना है वो मेन रहेगा ना, स्टूडेंट्स। यस, जैसे ही आपने ये क्वेश्चन पूछा कि कौन सी क्लास को पढ़ाना है, इसका मतलब क्या हुआ, उन स्टूडेंट की करंट स्किल्स क्या हैं, उन स्टूडेंट का नॉलेज का लेवल क्या है। एम आई राइट? तो सबसे पहली जो गैप एनालिसिस की पहली स्टेज होती है कि आपको ये देखना है कि आपके स्टूडेंट का लेवल क्या है, वो करंट स्किल्स कितनी है उनकी, और करंट नॉलेज स्टेटस कैसा है। देन उसके जानने के बाद आप अपनी ट्रेनिंग के गोल्स को आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज योर टीचिंग एंड ट्रेनिंग गोल्स, ठीक है। देन थर्ड स्टेप में आता है असर्टेन परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, उनकी परफॉर्मेंस की कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है उसके बारे में। और उसके बाद चौथी स्टेप होती है
formulate learning activities to address that issue. इसका मतलब बहुत सीधी सी बात है कि हमको सबसे पहले नीड एनालिसिस करना है, बच्चों का प्रायर नॉलेज क्या है, मतलब ये हमको तय करना है कि हम किस लेवल के, किस एज ग्रुप के लर्नर के लिए हम अपना इंस्ट्रक्शनल सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं. Okay, so this is first stage, we call it identify instructional goals. Means हमारे इस कंटेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने के बाद छात्र के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा, what he will be able to develop, what type of skill, what type of attitude will be able to develop after learning from this content. Okay, so अब उसके साथ साथ जो हम गैप एनालिसिस में बात कर रही थी आपसे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू कंसिडर अबाउट लर्नर, देयर डेमोग्राफिक, वो किस एरिया को बिलोंग करते हैं, देयर कॉग्निटिव एंड प्रायर नॉलेज कैसा है, देयर फिजियोलॉजिकल एंड इफेक्टिव सोशल स्किल्स कैसी हैं, ये सब चीजों के बारे में हमको जानना जरूरी होता है. इफेक्टिव एंड सोशल स्किल्स मतलब देयर सोशल बैकग्राउंड क्या है, उनका इमोशनल स्किल्स कैसी हैं, ये सारी चीजें हम कक्षा में एंटर करते समय हमें ये सब चीजों को ध्यान में रखना होता है. ऐसा नहीं हो कि हम कुछ ऐसे, हमारा यदि मान लो बहुत डिप्राइव्ड या विलेज बैकग्राउंड के बच्चे हैं और हम उनको बहुत ज्यादा एडवांस टाइप के कॉन्सेप्ट पढ़ाने की, एडवांस टाइप के एग्जांपल्स देंगे तो कभी कभी हमारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं. या तो ये हमको बेहतर यह होता है कि हम उनके अफेक्टिव और सोशल बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखें, उनके कॉग्निटिव और प्रायर नॉलेज को भी ध्यान में रखें. उनके डेमोग्राफिक वेरिएबल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट स्टेज में जब हम गैप एनालिसिस करते हैं तो ये सारी चीजें को हमें जानना जरूरी होता है. आप में से कई लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यू आर ट्राइंग टू डेवलप अ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन फॉर द रिमोट लर्नर. आईसीटी बेस्ड डिजाइन करना है, मेरे लर्नर्स तो रिमोट लर्नर्स हैं, तो मैं उनके बारे में कैसे जानूं, उनको कैसे समझूं. तो इसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर, एज ए इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर, हमको ये तय करना होता है कि ये जो हम कंटेंट डेवलप कर रहे हैं ये कौन से स्टूडेंट, कौन से लेवल के स्टूडेंट के लिए डेवलप कर रहे हैं, हमारा इंटेंडेड जो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीजें हमको पहले से डिजाइन करके अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस के आधार पर हमको ये सब प्लान करना होगी, तभी हम इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल सिस्टम को डिजाइन कर पाएंगे. देन सेकंड स्टेज, कंडक्ट इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस. तो इसके अंदर सेकंड जो स्टेज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आपने मुझे बताया कि सबसे पहले आप पूछोगे कि टॉपिक क्या पढ़ाना है, टॉपिक पढ़ाने के बाद आप पूछोगे किसको पढ़ाना है. तो पहला जो स्टेज है वो टॉपिक के साथ साथ किसको को हम पहले सेटिस्फाई करेंगे कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो किस लेवल के लर्नर को पढ़ा रहे हैं. टॉपिक तो ठीक है लेकिन लेवल ऑफ लर्नर आल्सो मैटर्स. सोलर सिस्टम आप 5th क्लास के बच्चे को भी पढ़ा सकते हो, वही सोलर सिस्टम आप जियोग्राफी में और जियोलॉजी के बीएससी के बच्चों को भी पढ़ा सकते हो. तो ये जो लेवल है वो कहीं ना कहीं हमारा एंट्री बिहेवियर, हमको सबसे पहले कंडक्ट इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस के पहले हमारे लर्नर को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमारे जो कंटेंट है उसके हिसाब से नेसेसरी एंट्री बिहेवियर आपको देखना है. नाउ व्हाट इज एंट्री बिहेवियर? एंट्री बिहेवियर का सिंपल सा मतलब है कि उनकी प्रायर नॉलेज क्या है, उनको पहले से क्या चीजें पता होंगी, ये हमारी अजम्पशंस क्या हैं. दैट इज कि मुझे से सीखने से पहले हमारे स्टूडेंट को ये चीजें, दिस टाइप ऑफ थिंग्स दे आर ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ. ये चीज हम जब ध्यान में रख पाएंगे तभी हमारा एंट्री बिहेवियर तय होगा कि हम ये मानते हैं कि उनका प्रायर नॉलेज क्या है और उस प्रायर नॉलेज के बेसिस पर उनको ये सब चीजें ऑलरेडी पता है. नाउ आई विल गो अहेड विद दैट ऑलरेडी नोन थिंग्स को. जैसे मैंने आपको बताया नया लर्निंग के लिए प्रायर नॉलेज को हुक करना होता है, तो सिमिलरली नेसेसरी एंट्री बिहेवियर आपको जानना होगा और एंट्री बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए आपको आपकी गोल परफॉर्मेंस को 1 by 1 सेट करना होती है. ओके, सो इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस का मतलब होता है डिटरमाइन द इंस्ट्रक्शनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आपको डिसाइड करना है. नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स? एनीवन? इंस्ट्रक्शनल गोल या ऑब्जेक्टिव क्या है? एनीवन can give me the answer for that? What is instructional goals and objectives? Anyone please? हाँ मैडम, वो पर्टिकुलरली वो स्टूडेंट वो लर्निंग करने के बाद
उनका मतलब क्या होगा ऑब्जेक्टिव, मतलब वो एज अ लर्नर वो कहाँ तक पहुंच जाएंगे, और ये होता है। या यू आर एग्जैक्टली राइट सर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव का सीधा सा मतलब होता है कि जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं उस कंटेंट को पढ़ने के बाद छात्र के व्यवहार में व्हाट बिहेवियर मॉडिफिकेशन आई एक्सपेक्ट। Like, let us take the example of my today's talk. Ki what is in my mind, what I plan learning objective, that all the learners or all the students will be able to understand and develop instructional system design system module with a proper procedure. They will understand the different steps of instructional system designing. They will be able to use different steps of instructional system designing in designing their own instruction system. तो ये मेरा बेसिक लर्निंग गोल है, ये इंस्ट्रक्शनल का गोल है, ऑब्जेक्टिव है। और अब इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? डिफाइन एंड डिस्क्राइब इन डिटेल द टास्क एंड सब टास्क दैट द स्टूडेंट विल परफॉर्म। यदि मुझे उनको इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन की पूरी प्रोसेस सिखानी है तो मुझे ये भी ट्राई करना होगा कि मैं इस तरीके की एक्टिविटी डालूं जिससे स्टूडेंट अपने खुद के लर्निंग आउटकम्स डिजाइन कर सकें। they will be able to rearrange their content in a systematic manner. Then they will select proper appropriate media to deliver that content to the learner. They will learn the evaluation strategies also. ये सारी चीजें हमको प्लान करना होगी, ये सारी चीजों के हिसाब से हमको कंटेंट अरेंज करना होगा, इसी के हिसाब से हमको टास्क अरेंज करना होगा। तभी हमारा तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको कंटेंट को एनालिसिस करना होती है, इंस्ट्रक्शन की एनालिसिस करना होती है, ऑब्जेक्टिव सेट करना होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमको कंटेंट एनालिसिस करना होती है। देन स्पेसिफाई द टाइप नॉलेज टाइप, हम किस लेवल का सिखा रहे हैं उनको, वो भी हमको स्पेसिफाई करना होता है। देन सिलेक्ट ट्रेनिंग आउटकम्स दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट, सीखने के बाद उनका आउटकम क्या आएगा वो भी हमको तय करना है। एंड उसके आधार पर हमको प्रायोरिटाइज करना है और टास्क को सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है। सपोज आई हैव टू टीच सोलर सिस्टम टू माय लर्नर, मुझे 5वीं क्लास के बच्चों को सोलर सिस्टम सिखाना है। मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि सोलर सिस्टम को सीखने के बाद छात्र क्या क्या समझ पाएंगे। देन उसके बाद मुझे ये उनको, यदि मेरा ये कंटेंट है कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द formation of day and night, the principle behind or the process of formation of day and night, then of course I have to arrange my content in such a manner so that the student, सबसे पहले मैं उनको लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उसको बताऊंगी, फिर नॉन लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फिर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन भी बताना पड़ेगा। ये सब करने के बाद हम उस तक पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब आई हैव टू अरेंज माय कंटेंट इन अ सीक्वेंशियल and systematic order, then only my student will be able to give proper response to me. So we have to prioritize and sequence the task. Then this is the second stage. Now we reach to the third stage, analyze learner's context. That is also very important. उसका prior knowledge, learning environment और application of skill and knowledge, ये भी हमको पता होना चाहिए, तभी हम अपने लर्निंग आउटकम को अचीव कर पाएंगे। तो प्रायर नॉलेज को देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई अवर लर्नर। एनालाइज लर्नर का मतलब होता है उसकी ग्रेड, उसकी एज, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और सोशल प्रॉब्लम, सोशो इकोनॉमिक लेवल, स्पेसिफिक एंट्री कॉम्पिटेंसीज, दैट इज प्रायर नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड क्या है। देन अनदर इम्पॉर्टेंट कि उसकी लर्निंग स्टाइल कैसी है, वेदर ही इज वर्बल लर्नर, लॉजिकल लर्नर, विजुअल लर्नर, ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखना होती है, तभी हम अपने लर्नर को प्रॉपरली, बिकॉज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एज अ टीचर वी नीड मैक्सिमम लर्निंग। जब मैक्सिमम लर्निंग करना चाहिए, हमें 100% लर्नर का अचीवमेंट चाहिए, तो ऑफकोर्स हमको उस लर्नर की स्पेसिफिक नीड को ध्यान में रख करके अपने इंस्ट्रक्शन सिस्टम को डिजाइन करना होता है। और जब भी आप अपने लर्नर की स्पेसिफिक नीड को ध्यान में रखेंगे तो ऑफकोर्स आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होती हैं, तभी आप सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शनल सिस्टम को एज पर द नीड ऑफ इंडिविजुअल लर्नर यू कैन डिजाइन। तो 360 डिग्री ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहले हमको एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है,
मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट को ध्यान में रखना है, उसके कल्चरल बैकग्राउंड को ध्यान में रखना है, उसके सोशल बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखना है। और जब भी रिमोट की बात आती है तो हमको उसके टेक्नोलॉजी के अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी यूज के बारे में, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उसके पास अवेलेबल है उसको भी ध्यान में रखना होगा, तभी हम इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल सिस्टम को डिजाइन कर पाएंगे। ओके, सो लेट अस गो अहेड, we'll go with the next stage, that is called stage 4, write performance objectives, learning outcome। अब अभी तक हमने क्या किया, इन तीनों स्टेजेस में सबसे पहले हमने क्या किया, लर्नर सिलेक्ट किए, लर्नर का प्रायर नॉलेज देखा, उनकी वेराइटी ऑफ उनकी स्किल्स के बारे में जाना, उसके बाद हमें अपने कंटेंट को रीअरेंज किया, देन कंटेंट के आधार पर कंटेंट में क्या इंपॉर्टेंट है ये तय किया, उसके बाद हम परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव या लर्निंग आउटकम लिखते हैं। और ये लर्निंग आउटकम बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल मतलब हमारा लर्नर सीखने के बाद क्या टास्क परफॉर्म कर पाएगा और उस परफॉर्म टास्क को हम कैसे जांच पाएंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। देन कौन सी कंडीशंस हैं और कौन सा क्राइटेरिया है, ये भी हमको परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव या लर्निंग आउटकम लिखते समय ध्यान में रखना होता है, राइट। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि सोलर सिस्टम को स्टूडेंट समझ पाएंगे, डे एंड नाइट फॉर्मेशन की प्रोसेस को समझ पाएंगे। सो स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या हुआ, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन, वेरी स्पेसिफिक है कि उसको डेफिनेशन पता होना चाहिए। देन विल बी एबल टू, अब मैं ये बोलती हूँ कि अंडरस्टैंड, तो मैं अंडरस्टैंडिंग को कैसे चेक करूंगी, अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको डिफाइन करना पड़ेगा, उनको कोई राइटिंग का टास्क देना पड़ेगा, उनको कोई ना कोई एक्सप्लेन करने का टास्क देना पड़ेगा, तो तभी हम उस चीज को मेजर कर पाएंगे। So learning objectives should be, learning outcomes should be very specific, measurable, and include learning conditions and criteria. Okay. Now let us go with that कि how to write learning outcome। ये सबसे बेस होता है किसी भी इंस्ट्रक्शनल सिस्टम को डिजाइनिंग के लिए, किसी भी टीचिंग प्रोसेस को डिजाइनिंग के लिए, किसी भी व्यक्ति को ट्रेनिंग या टीचिंग या उसकी एटीट्यूडनल चेंजेस के लिए बहुत important होता है। So let us understand that what are the different areas of learning and how this growth through curricular input के थ्रू हम स्टूडेंट की ग्रोथ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। As we are all aware that we have 3 basic domains of learning. One we call cognitive domain, second one is affective domain, and third one is psychomotor domain. Now what this 3 domain is, cognitive domain is basically dealing with the, as I told you, learning means increase in knowledge, छात्र के ज्ञान में वृद्धि, और ज्ञान में वृद्धि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, दैट इज योर कॉग्निटिव डोमेन। देन मैंने आपसे बोला कि उसके स्किल्स का इंपॉर्टेंस है, नॉलेज, स्किल चेंज होना चाहिए, स्किल चेंज होने के लिए हमारे पास में साइकोमोटर डोमेन होता है, और उसका एटीट्यूडनल चेंज आना चाहिए, इसका मतलब है कि वो अफेक्टिव डोमेन के साथ हम डील कर रहे हैं। सो दीज आर द 3 डोमेन्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जिससे हम स्टूडेंट को इनपुट भी देते हैं और उसकी ग्रोथ को भी मेजर कर पाते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस 3 डिफरेंट डोमेन्स आर। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन दैट इज गिवन बाय बेंजामिन ब्लूम ने, और उन्होंने उसमें हर एक व्यक्ति के सीखने के अंदर 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। वी कॉल इट नॉलेज, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. Now what this knowledge is? Knowledge का मतलब क्या होता है, कैसे हम इसको समझें और कैसे हम अपने इंस्ट्रक्शन में इसको डिजाइन करें। So let us take a very simple example जो कि मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, और you will be able to understand that. Let us take an example of a 6 months or 8 months old baby. 6 महीने का एक छोटा बच्चा है, और मदर उसको हर दिन ऊपर घूमते हुए फैन को दिखा करके बोलती है फैन, ठीक है। हर मदर, कोई भी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि 6 महीने का बेबी है और मदर एवरीडे उसको एक घूमते हुए ऑब्जेक्ट दिखा करके बोलती है फैन। नेक्स्ट टाइम एक पंखा दिखा करके फैन बोल रही है, नेक्स्ट टाइम एक घूमती हुई फिरकी बच्चे के सामने लाई जाती है, द चाइल्ड सेज फैन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हुआ जब भी मदर ने घूमते हुए ऑब्जेक्ट को फैन बोला तो बच्चे ने एक चीज सीखी, उसका नॉलेज डेवलप हुआ कि घूमती हुई ऑब्जेक्ट मतलब फैन है,
देन कंप्रीहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हुई और उसने ये सोचा कि हर घूमती हुई चीज क्या है, फैन है। जैसे ही कोई घूमती हुई फिरकी या कोई भी चीज उसके सामने आती है वो उसके अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करता है और ही सेज फैन। तो दैट इज एप्लीकेशन का एग्जांपल हुआ कि जो भी नोन अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट उसको उसने अप्लाई किया। देन बेबी थोड़ा और बड़ा होता है, नाउ ही स्टार्टेड क्राउलिंग, और अब जब भी उसको गर्मी लगती है तो वो क्या कहता है, फैन की तरफ उंगली दिखाता है। दैट इज अगेन एप्लीकेशन का एस्पेक्ट होता है। जब बेबी थोड़ा बड़ा हो गया, क्रॉल करने लगा, तो अब जब भी उसको गर्मी लगती है वो क्रॉल करते हुए कूलर के सामने चला जाता है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हुआ कि पहले उसको फैन का कॉन्सेप्ट उसके सामने था, देन ही गॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज कूलर, और अब एनालिसिस की स्टेज पर आ गया है एंड ही फाइंड दैट कि जब भी गर्मी लगती है ही रीचेस टू बिफोर द कूलर, मतलब वो उसका एनालिसिस किया उसने फैन और कूलर के बीच में, देन ही ड्रॉ अ कंक्लूजन, और अब जब भी गर्मी लगती है वो क्या करता है, क्रॉल करके फैन के सामने पहुंच जाता है। इसका मतलब उसका लेवल ऑफ लर्निंग कहाँ तक हो गया है, वो एनालिसिस, सिंथेसिस और फाइनली इवोल्यूशन की स्टेज पर पहुंच गया है। तो इस तरीके से हम अपने कंटेंट को भी सिखाते समय ये चीज ध्यान में रखनी है कि केवल यदि हम केवल डेफिनेशन लिख पा रहा है, केवल कॉन्सेप्ट को बता पा रहा है, उसके साथ कोई एग्जाम्पल्स कोट कर पा रहा है, देन उस एग्जाम्पल के साथ साथ दो चीजों में कंपेयर कर पा रहा है, कंपेयर के बाद अपने खुद के कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पा रहा है, तो ये सारी स्टेजेस हमको कॉग्निटिव डोमेन की होती हैं। देन लेट अस टेक द हाउ दिस साइकोमोटर और हाउ दिस अफेक्टिव डोमेन वर्क्स। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगी अफेक्टिव डोमेन का। कई बार ऐसा होता है कि रेडियो के ऊपर कोई गाना बज रहा है, आप क्या करते हैं? वन क्वेश्चन टू यू, रेडियो पर गाना बज रहा है, क्या करते हैं आप? एनीवन? एनीवन प्लीज? अगर अच्छा गाना है तो उसका आवाज बढ़ाते हैं ना। वंडरफुल। कई बार आप क्या कहते हैं? हम भी गाना बोलते हैं साथ साथ। फाइन, देखिए जैसे ही आपको रेडियो पे गाना सुनाई देता है आप क्या करते हैं, उसको रिसीव करते हैं। रिसीव के बाद मैडम ने बोला कि या तो गाना अच्छा हुआ तो, एक शब्द बोला इन्होंने, अच्छा हुआ तो वॉल्यूम बढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यू आर ट्राइंग टू रेस्पॉन्ड। तो थर्ड स्टेज आपकी क्या हुई, आपने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद आप उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, whether you are increasing the volume of radio or you are decreasing the volume of radio. That means respond करने के बाद आपका response may be positive, may be negative. Negative है तो वॉल्यूम कम हो गई, गाना अच्छा है तो आपने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, और उसके साथ मैडम ने बोला हम गाने भी लग जाते हैं। दैट मीन्स आप उस गाने को वैल्यू कर रहे हैं, कई बार आप उसको गाने को गुनगुनाते हैं या उस गाने के से रिलेटेड और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी किसने गाया है, कौन सी फिल्म का गाना है, ये सिंगर कौन है, ये सारी चीजें आप करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे आप उसको वैल्यू करने लगते हैं और उस सिंगर के गाए हुए गाने सुनने की कोशिश करते हैं, कहीं सीडी खरीदते हैं, कोई कैसेट खरीदते हैं, और एक आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यस लता मंगेशकर ने गाया था ये गाना, लता मंगेशकर के और भी गाने बहुत अच्छे हैं एंड लता मंगेशकर इज ए वंडरफुल सिंगर, बहुत अच्छी सिंगर हैं। ये हमारा एक कैरेक्टर बन जाता है। जब भी आपको पूछा जाता है, आपकी चॉइस दी जाती है कि हु इज द बेस्ट सिंगर, यू इमीडिएटली से दैट लता मंगेशकर इज द बेस्ट सिंगर। सो इसी तरीके से आपके इमोशंस या अफेक्टिव डोमेन डेवलप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज रिसीविंग, देन वी रिस्पॉन्ड इट, after responding we value it, if it response is positive we try to value it, we try to organize it and it will be a part and parcel of character building hota hai. So this is our affective domain. In the same manner it works in the classroom situation also. यदि आपके कंटेंट का प्रेजेंटेशन का तरीका आपका उसके साथ बच्चों को पसंद आता है तो वो उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। यदि आपका बताने का तरीका, यदि आपके उनके साथ इंटरेक्शन का तरीका उनको पसंद नहीं आया तो दे शट ऑफ यू और वो कहीं और गुम हो जाते हैं और आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। So this is affective domain. Now the third domain is psychomotor domain. ये स्किल से संबंधित डोमेन है और ये कैसे इसके 6 स्टेजेस काम करती हैं। I'll give you another example. आप सभी लोगों ने बचपन में कहीं ना कहीं साइकिल चलाना सीखी होगी। Am I right? हर एक व्यक्ति ने बाइसिकल राइडिंग का एक एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि सभी लोगों ने कहीं ना कहीं बाइसिकल चलाने की सीखा होगा। हम सबसे पहले जब रिमेम्बर योर चाइल्डहुड डेज, जब आपने साइकिल चलानी सीखी थी, आप या एक छोटा बच्चा जो साइकिल चलाना सीख रहा है वो सबसे पहले क्या करता है, वो साइकिल की तरफ इमिटेट होता है ऐसा? Am I right? Yes.
बच्चा कोई Yes. भी नया ऑब्जेक्ट देख करके उसकी तरफ वो इमिटेट करता है। उसके बाद क्या किया, धीरे धीरे बच्चा उसके पैडल को घुमाता है, हैंडल को घुमाने की कोशिश करता है। तो हम किस स्टेज पे होते हैं, मैनिपुलेशन की स्टेज पर होते हैं। थोड़े दिनों के बाद बच्चा उस हैंडल को लेकर के, साइकिल को लेकर थोड़ी दूर तक चलना शुरू करता है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन। देन एक पैडल के ऊपर पांव रख के हम उसको मूव कर रहे थे, दैट इज ऑल्सो मैनिपुलेशन। धीरे धीरे क्या हुआ, एक पैडल से हम थोड़ी दूर तक उसको पैडल मार करके बैलेंसिंग सीखे। देन उसके बाद प्रिसीशन आया, हम दोनों पैडल के ऊपर साइकिल चलाना शुरू करें। देन धीरे धीरे सीट पर बैठ करके साइकिल चलाना शुरू करें। तो ये प्रिसीशन की स्टेजेस बढ़ती चली जाती हैं। और फिर स्टेज आती है आर्टिकुलेशन, जब हम परफेक्टली उस चीज को सीख जाते हैं। उसके बाद उस साइकिल पर बैठ करके कब ऑफिस पहुंचे हमको नहीं पता, वो दैट विल बी अ नेचुरल प्रोसेस होगी। द सेम वे वी लर्न स्विमिंग आल्सो। सो इन दिस वे सबसे पहले इमिटेशन, अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, उसका हैंडलिंग, मैनिपुलेशन, then gradually getting the precision, perfection in handling that object, then articulation, it will be a part of a learning complete हो जाती है, and then it will convert into a natural process, habit बन जाती है और हम easily bicycle को ride कर पाते हैं। So this is in this manner the psychomotor domain works। और क्लासरूम में ये सारी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। जैसे आपने देखा होगा कि फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस में फुटबॉल को सीखना या बास्केटबॉल सीखना या कोई भी गेम सीखना या कोई भी एक्सपेरिमेंट को सीखना, ये सारी प्रोसेस से गुजरते हैं। सो वी हैव वी हैव 3 domains: cognitive domain, that is dealing with the increase in knowledge, and affective domain, development of right attitude towards our learning content, and training means psychomotor domain, learning a skill। ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है हमारे परफेक्ट लर्निंग के लिए। तो सबसे पहले लेट अस, अब जब हम क्लासरूम सिचुएशन की बात करते हैं जहां पर कि हमको ज्यादातर हमारे कॉग्निटिव डोमेन के साथ हमको ज्यादा डील करना होता है, तो हमको सबसे जो पहली स्टेज होती है वो है कि रिमेम्बरिंग। तो रिमेम्बरिंग का सीधा सा मतलब है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस 6 स्टेजेस, कि सबसे पहले हम कोई भी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना, आइडेंटिफाई करना, रिकॉल करना, लिस्ट बनाना, नेम देना, मेमोराइज करना, रिपीट करना, स्टेट, डुप्लीकेट, मैच, ऑल दिस विल कम अंडर द स्टेज ऑफ रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग के बाद सेकंड स्टेज होती है अंडरस्टैंडिंग। तो द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन, डिमॉन्स्ट्रेट, समराइज, रिव्यू, जनरलाइज, क्लासिफाई, आइडेंटिफाई, इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट। देन उसके बाद आती है स्टेज एप्लीकेशन की। तो सबसे पहले कोई भी कॉन्सेप्ट को रिमेम्बर करना, उसको डिफाइन करना, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करना, देन उस अंडरस्टैंड करने के बाद उसको अप्लाई करना। सो दैट इज द एप्लीकेशन। अप्लाई, यूज, सॉल्व, कंप्यूट, इंप्लीमेंट, इंस्ट्रक्ट, डेमोन्स्ट्रेट, इंटरप्रेट, कंप्लीट, इस तरीके के एक्शन वर्ब्स हैं जो कि लर्निंग आउटकम बनाते समय हमको लिखना होते हैं। एप्लीकेशन के बाद क्या होगा, एनालिसिस होगी। एनालिसिस का मतलब है 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएगा, उनको ऑर्गेनाइज कर पाएगा, उनको एग्जामिन कर पाएगा, उनको कंपेयर कर पाएगा, कॉन्ट्रास्ट कर पाएगा, क्लासिफाई कर पाएगा। देन एनालिसिस, एनालाइज के बाद इवेल्युएट होता है। इवेल्युएट का मतलब होता है जज करेगा, जस्टिफाई करेगा, सिलेक्ट करेगा, डिफेंड करेगा, इवेल्युएट, रेट, असेस, रैंक, आर्ग्यू, रिव्यू, दीज ऑल आर द डिफरेंट एक्शन वर्ब्स हैं जो हम अपने कंटेंट के साथ में हमको यूज करना होते हैं। देन क्रिएट, लास्ट स्टेज होती है जो कि हमारी क्रिएशन की स्टेज है। क्योंकि बेंजामिन ब्लूम ने जो लर्निंग की टैक्सोनॉमी दी थी वो उन्होंने पहले नाउन फॉर्म में दी थी, उसके बाद उसका मॉडिफाइड वर्जन आया। बिकॉज बेंजामिन ब्लूम ने जो टैक्सोनॉमी दी थी वो 1956 में दी थी, उसके बाद उसको मॉडिफाई किया गया था 1970s में, और देन रिसेंटली उसको वर्क फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। तो जो पहला नॉलेज था उसकी जगह हम उसको टर्म देते हैं रिमेम्बर। कंप्रीहेंशन को उन्होंने टर्म दिया है अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन को टर्म दिया है अप्लाई, एनालिसिस को एनालाइज, जो सिंथेसिस था उसकी जगह टर्म लिया इवेल्युएट, और इवेल्युएशन को जगह पर उन्होंने इवेल्युएशन को सेकंड 5th ग्रेडर पे डाला, और क्रिएट को लास्ट स्टेज होगी जिसमें क्रिएट का मतलब होता है इम्प्लीमेंट, डिजाइन, कंस्ट्रक्ट, डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट, प्रोड्यूस सम नया कॉन्सेप्ट, रिवाइज, पर्पस, बिल्ड, डिवाइस, ऑल दिस कम्स अंडर द क्रिएट। क्रिएटिंग इज द हाईएस्ट लेवल है जहां पर कि वो रिमेम्बर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज और इवेल्युएट से हायर स्टेज पर आता है, जिसमें व्हाट इफ दिस क्वेश्चन को बोलते हैं हम, कि हम उसमें कुछ नया कर पाए, कुछ नई क्रिएटिविटी इन्वॉल्व कर पाए, दैट इज द क्रिएट। सो दिस इज द 6 स्टेजेस हैं, उसके आधार पर ये लर्निंग आउटकम के वर्ब्स हैं
इनको जब भी आप अपना इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन करें, आप इन वर्ब्स को यूज करें, तो ऑटोमेटिकली आपके जो लर्निंग आउटकम है वो वेल डिफाइंड हो जाएंगे। आपको केवल उसमें कंटेंट को अरेंज करना है। ओके, सो दिस इज अबाउट द नॉलेज के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। देन अब एक छोटा सा लेते हैं कि कैसे लर्निंग एंड रिमेम्बरिंग। यदि आप किसी कंटेंट को केवल रीडिंग मटेरियल देते हैं, तो केवल रीड करते हैं, तो 10% उसका समझ पाते हैं। पढ़ने के साथ साथ यदि उसको हियर भी करते हैं, रीडिंग विथ हियरिंग, तो 20% उसको रीडिंग करते हैं, 10% ले पाते हैं। सुनते हैं, 20% उस कंटेंट को याद कर पाते हैं, समझ पाते हैं। कोई ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं तो उसको सीइंग के थ्रू आप 30% याद कर पाते हैं, रिमेम्बर कर पाते हैं। यदि आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं तो 40% देयर इज अ पॉसिबिलिटी। यदि आप उस चीज को सुनने, देखने, समझने के बाद उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, 60% आप रिमेम्बर कर पाते हैं। यदि आप उस कंटेंट को अपने खुद के एक्सप्लोर करेंगे, खुद अपनी तरफ से फ्रेज करेंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप 80% तक इंफॉर्मेशन को रिमेम्बर कर पाएंगे। Then by exploring and overcoming difficulties on your own, you can remember up to 90% of the information. So how we acquire information and how we remember information, ये दोनों चीजें बहुत important है। So what does a teacher understand by this? एक टीचर को इससे क्या समझना चाहिए? बहुत सीधा सा बात है कि हमको केवल वर्बल टॉक नहीं करना है, हमको एक्टिविटीज भी देना है जिससे बच्चे खुद एक्सप्लोर करें, वो अपनी डिफिकल्टीज को खुद सॉल्व करें, तो वो सीखे हुए कंटेंट को 90% तक याद रख पाएंगे। नाउ तो एवरेज स्टूडेंट का रिटेंशन रेट की हम बात करें, यदि हम केवल क्लास में लेक्चर देंगे, बच्चे केवल 5% याद कर पाएंगे। लेक्चर के साथ साथ कुछ रीडिंग मटेरियल देंगे, वो 20% उसको रिमेम्बर कर पाएंगे। उसके साथ साथ कोई ऑडियो विजुअल ऐड करेंगे, 20%। यदि हम उसको डिमॉन्स्ट्रेट खुद करके दिखाएंगे, कुछ एक्टिविटी करने को देंगे, 30% वो रिकॉल कर पाते हैं। यदि हम उसके ऊपर क्लास में डिस्कशन सेशंस करें, जैसे कल मैंने आपको बताया कि यदि हम फ्लिपिंग द क्लासरूम करते हैं, तो क्लास में क्या करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं। तो ऑफ कोर्स जो मेरी रिसर्च कहती थी कि फ्लिप्ड क्लासरूम इज बेटर, द रीजन इज दैट कि हमने उसमें क्लासरूम के टाइम को डिस्कशन मोड में कन्वर्ट किया था। तो मैक्सिमम स्टूडेंट आउटकम हुआ कि वो 50% तक डिस्कशन से देन प्रैक्टिस डूइंग, यदि हम उनको उसके ऊपर कुछ अपॉर्चुनिटी देते हैं, कुछ काम करने के लिए देते हैं, तो वो 75% तक याद रख पाते हैं। टीच अदर्स, इमीडिएट यूज, 90% तक दे रिकॉल कर पाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रुप डिस्कशन के बाद कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है, दे कैन टीच अदर्स, ईच अदर्स, they can immediately use. So of course collaborative learning results are much better than the other normal traditional teaching. So how the average student retain the knowledge, ये इसके लिए एक टीचर को जानना बहुत जरूरी है कि जब भी आप अपना इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन करें, आपको उसमें एक्टिविटीज डालना है, स्टूडेंट के लिए एक डिस्कशन भी डालना होंगे, स्टूडेंट के लिए वो खुद अपॉर्चुनिटी दें जिससे वो बाकी लोगों के साथ करें, तो आपके मॉड्यूल ज्यादा प्रभावी हो पाएंगे। ना ये तो हुआ हमारा लर्निंग आउटकम डिजाइन करने के बाद, जो हम चौथी स्टेज पर थे। अब आती है 5वीं स्टेज, दैट इज डेवलप असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो हमको असेसमेंट के इंस्ट्रूमेंट डेवलप करने के लिए भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप अपने लर्निंग आउटकम मेजरेबल टर्म में बनाएंगे तो आपको आप उनको असेस करने के टूल्स को भी डेवलप कर पाएंगे। तो जब हम इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन करते हैं, तो उस इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन करते समय हमको उनके असेसमेंट को भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक आप असेसमेंट के टूल डिवाइस नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आपका सिस्टम वर्क कर रहा है कि नहीं। सो एम्फेसिस ऑन एक्यूरेटली मेजरेबल बिहेवियर, और स्किल्स हमको कौन सी मेजर करना है, कौन सी स्किल इंपॉर्टेंट थी जिसको हमको मेजर करना है, वो हमारे इवैल्यूएशन टूल का पार्ट होता है, दैट इज डेवलप असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये भी आपको प्लान करना है कि आप उस जो भी कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हैं उसको असेस कैसे करेंगे। ओके, सो असेसमेंट टूल बेसिकली असेसिंग लर्निंग, दैट मीन्स कोई भी प्रोग्राम में हम कैसे असेस करते हैं गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स जो हमने डिजाइन किए थे, देन हमारे एग्जाम्पल्स, लेवल ऑफ एक्सप्रेशन। तो हमको क्यूरिकुलम को असेसमेंट टूल के साथ मैपिंग करना जरूरी होता है। तो जो भी आपने क्यूरिकुलम की मैपिंग करी यदि लर्निंग असेसमेंट के साथ में, तो आप इफेक्टिव असेसमेंट कर पाएंगे। नाउ 6th स्टेज आती है डेवलप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी। तो डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि हम ये जो कंटेंट अभी तक हमने प्लान कर लिया है, जिसमें हमने असेसमेंट टूल भी प्लान कर लिया,
कंटेंट भी रीअरेंज कर लिया, ऑब्जेक्टिव्स भी डिजाइन कर लिए, हमने मीडिया भी सिलेक्ट कर लिया, देन हम ये सारा करने के बाद अब इसको हम डिलीवरी कैसे करेंगे, हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कैसे करेंगे बिफोर द स्टूडेंट. सो प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिस एंड फीडबैक, टेस्टिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटी. ये जब हम इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं तो हमको इसको इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट करना, उनको हम कैसे प्रैक्टिस करने की और उनसे फीडबैक कैसे देंगे, कैसे क्वेश्चंस रेज करेंगे, टेस्टिंग कैसे करेंगे, और ये सब करने के बाद हम कैसे फॉलो अप एक्टिविटी प्लान करेंगे, ये भी हमको डिजाइन करना होगा, ये भी आपको प्लान करना होगा. तो यदि हम इंस्ट्रक्शनल डिजाइन प्रोसेस में क्या हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्या हम उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, whether we are trying for giving them experiential learning, whether we are giving them opportunity for independent study, whether we are planning an interactive instruction, ये सारे आपको प्लान करना होता है for stage 6 where you will develop a right instructional strategy. और ये सब किस पर बेस्ड होगा, based on your content, based on your learning outcome, based on your design of your module. So ये तीनों सभी तरीके के आप यूज कर सकते हैं. You can give direct instruction, you can give indirect instruction by giving them some performance related, तो indirect instruction का पार्ट होता है. कोई एक्टिविटी दें तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का पार्ट होता है. कोई रीडिंग मटेरियल को खुद इंडिपेंडेंट लर्निंग, जो मैंने आपको बताया कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में इंडिपेंडेंट स्टडी की अपॉर्चुनिटी होती है. कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब इंटरैक्टिव इंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है ना. देन सेकंड स्टेज आती है, हियर you have to develop the real instructional material. ये सब आपको रियल मॉड्यूल डेवलप करना होता है. इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखना है कि क्या आप अपना नया मॉड्यूल डेवलप करेंगे या ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसको रीअरेंज करेंगे. क्रिएशन ऑफ न्यू मटेरियल, इसका मतलब क्या मैं अपना खुद का वीडियो बना रही हूँ, क्या मैं अपने खुद के कोई पीडीएफ फाइल डिजाइन कर रही हूँ, क्या मैं कोई लिंक या एग्जिस्टिंग मटेरियल मतलब ऑलरेडी नोन कोई प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की या कोई किसी और का वीडियो मैं अपने मॉड्यूल में लिंक कर रही हूँ. ये चीजें आपको यूज करना है. क्या मैं ऑलरेडी नोन कॉन्सेप्ट, कोई नोन मटेरियल जो ऑलरेडी नेट पर अवेलेबल है उसको ही मैं लिंक कर रही हूँ. जैसे मैंने आपको बताया था कि कल फैट के बहुत सारे लेबोरेटरी एक्सपीरियंसेस, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट थे, तो हम वो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट को अपने कंटेंट के साथ लिंक कर सकते हैं. So that is the one of the way through which we can use existing material with in a linking with our own module के साथ में. फिर हम एक छोटा अपने इंस्ट्रक्शन मॉड्यूल डिजाइन कर लें, उस मॉड्यूल के साथ में कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी को जोड़ दें, कोई किसी तरीके का ऑलरेडी नोन कोई प्रोजेक्ट उनके साथ शेयर कर लें. तो ये चीजें आपको डिसाइड करना है कि आप अपना खुद का मटेरियल डेवलप कर रहे हैं या आप ऑलरेडी नोन मटेरियल को डेवलप कर रहे हैं. अभी इंटरनेट के ऊपर वेराइटी ऑफ ऑलरेडी वेरी गुड क्वालिटी मटेरियल इज अवेलेबल. तो एज ए गुड टीचर हम क्या कर सकते हैं, हर चीज नया क्रिएट करने के बदले उनकी लिंक उस मटेरियल को उस कंटेंट के साथ लिंक कर दें, तो आपका जो मॉड्यूल है वो ज्यादा अच्छा डेवलप हो पाएगा. तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का हम जो प्लान कर रहे हैं वो हमको देखना है कि हम कहाँ से कौन सा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को ले रहे हैं और हम अपना इंस्ट्रक्शनल मटेरियल किस आधार पर डिजाइन कर रहे हैं. देन ये सब होने के बाद आप नाउ योर मॉड्यूल इज रेडी, जिसमें हमने ये सारी कर ली. अब आता है दैट इज द कंडक्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन. जो आपने मॉड्यूल डेवलप किया है उसको हमको टेस्टिंग करना भी जरूरी है कि वाकई में हमने जो प्लान किया था वही चीजें हमारी हुई कि नहीं हुई. तो उसके लिए हम फील्ड टेस्टिंग का सहारा लेते हैं, क्योंकि कल मुझे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने फेसबुक का मॉड्यूल डेवलप किया था, तो हम फेसबुक का मॉड्यूल कैसे डेवलप कर सकते हैं. तो बहुत सीधी सी बात है कि आप एकदम से उस मॉड्यूल को लॉन्च करने के बदले आप क्या करें, किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट को, अपने कॉलीग टीचर्स को दिखा लें या छोटे स्मॉल 7-8 बच्चों को पहले उस मॉड्यूल को दें, उससे उनको पढ़ाएं, उससे उनको पढ़ने के लिए बोलें. उसके बाद उनके जो टेस्टिंग के रिजल्ट्स आते हैं दैट इज कॉल्ड स्मॉल ग्रुप इवैल्यूएशन, और फील्ड टेस्टिंग के रिजल्ट्स के आधार पर आप अपने मॉड्यूल को फिर से मॉडिफाई करें, उसमें कौन सी चीज छूट गई है, क्या चीज और आप उसमें डाल सकते हैं. ये सब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट होता है, क्योंकि जब भी हम कोई मॉड्यूल डालते हैं एक ही बार में परफेक्ट मॉड्यूल बने इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है और वैसा करना भी नहीं चाहिए. द वेरी सिंपल रीजन इज दैट कि जब बार बार हम उस मॉड्यूल को देखते हैं तो हमको खुद को अपने मॉड्यूल में चेंजेस समझ में आते हैं. सिमिलरली जब हम क्लास में एक ही कंटेंट को बार बार पढ़ाते हैं तो भी हर बार हमारे पढ़ाने में कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं, क्योंकि जब भी आप क्लास को लेने जाते हैं उसके पहले आप उस कंटेंट को
फिर से एक बार देखते हैं, देखते समय आपके पास नए आइडियाज आते हैं, उसमें आपको पुराने पढ़ाए हुए में कुछ कमियां दिखती हैं तो आप उसको मॉडिफाई करते हैं। सो दिस इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का यही मतलब होता है कि हम स्मॉल ग्रुप पर टेस्टिंग करें और अपने कंटेंट के अंदर सुधार करें। तो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन की 3 स्टेजेस हैं। प्री डेवलपमेंटल स्टेज, प्री डेवलपमेंट स्टेज के बाद डेवलपमेंट स्टेज एंड पोस्ट डेवलपमेंट स्टेज। So what is this pre-development stage? That is the stringent selection of module, then module writing, moderating workshop, screening, ये सब होगा। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन करा, एडिटिंग किया, ग्राफिक डिजाइन किया, डीटीपी डिजाइन किया, देन पोस्ट डेवलपमेंट स्टेज जो मैं अभी आपसे बोल रही थी, इंटरनल रिव्यू, फैकल्टी रिव्यू, देन राइटर्स रिव्यू, ये सारी चीजों को देख करके हम पोस्ट डेवलपमेंट स्टेज पर जाते हैं। सो रिवाइज इंस्ट्रक्शन, डेटा फ्रॉम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यूज्ड टू असेस द होल प्रोसेस को असेस करने के लिए हम यूज करते हैं। देन 9 स्टेज होती है, लास्ट स्टेज है कंडक्ट समेटिव इवैल्यूएशन। जो मॉड्यूल आपने डेवलप किया है उसके फीडबैक के लिए वो कैसा वर्क कर रहा है, उसके लिए समेटिव इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। देन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हेल्प स्टूडेंट टू लर्न एंड प्रैक्टिस। सो कब कब करना चाहिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? थ्रू आउट द कोर्स। आपके जैसे मैंने आपको बताया कि हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको क्वेश्चंस पूछना चाहिए। क्वेश्चंस पूछने से क्या होता है? यू विल गेट फीडबैक कि वेदर योर लर्नर इज गेटिंग व्हाट यू आर टीचिंग और नॉट। तो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस जब आप पूछते हैं तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो इट हेल्प स्टूडेंट टू लर्न एंड प्रैक्टिस थ्रू आउट द कोर्स। देन इट हेल्प्स यू, व्हाई वी आस्क दिस, टू आइडेंटिफाई गैप्स एंड इम्प्रूव लर्निंग, उसमें मदद होती है। एंड हाउ via approaches that support specific student need को support करता है। Then summative evaluation assess student performance at the end of instructional period, आखिरी में लिया जाता है। It collect evidence why this summative evaluation is done. It collect evidence of student knowledge, skills and proficiency, और via exit learning products और cumulative assessment जिसको हम बोलते हैं ना end semester examination, उसी तरीके से cumulative assessment उसको पूरा पढ़ने के बाद हम उसका assess करते हैं। So this is 2 type of assessment tool is very important when you design any instructional module. So now अभी तक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया उसी के ऊपर some certain expert has given a model of instructional system design. So let us go in a very short that what these different models of instructional system design is. तो सबसे पहले हम लेते हैं डिक और कैरी का मॉडल। तो उस मॉडल का मतलब उन्होंने एक आउटलाइन दी है जिससे एनी इंस्ट्रक्शन सिस्टम को हम डिजाइन कर सकें। तो सबसे पहला जो स्टेप उन्होंने बताया है वो है आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल गोल्स। तो ये जब हम इंस्ट्रक्शनल गोल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री बिहेवियर एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शनल जो एनालिसिस है उसके आधार पर, देन वी हैव टू राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, देन वी हैव टू डेवलप क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, प्री टेस्टिंग हम कर लें जिससे हमको ये सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं, हमारे लर्नर का लेवल भी पता पड़ जाए। देन हम उस प्री टेस्टिंग के आधार पर हम अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी को डेवलप करें। देन वी कैन सिलेक्ट द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड वी कैन डेवलप एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जब हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं तो उससे क्या होगा, वी कैन हैव after formative along with the formative evaluation we can go for the summative evaluation. Then we can modify our entry behavior, we can again revise our complete model, we can again revise our instruction based on all these. तो वही चीजें जो मैंने आपको बताई उन्हीं को एक इन्होंने समराइज फॉर्म में दिया है। द सेकेंड मॉडल इज ADDI मॉडल, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मॉडल। इसमें इन्होंने केवल 5 स्टेजेस बताई है। एनालाइज, एनालिसिस का मतलब एनालाइज द लर्नर, एनालाइज द कंटेंट, analyze the evaluation strategies, then you have to design, then plan your design, then development के बाद you have to implement on a small group, again revise, redesign, then evaluate, then finally go for the formal evaluation. All these stages are the same which we have already discussed. Then simple है कि सीधा सीधा बात है, डेवलप करिए, उसके बाद उसको इवेल्युएट करिए, एनालाइज किए, ये वही सेम ADDI मॉडल 5 स्टेजेस का जो मॉडल है। देन एक और इम्पोर्टेंट मॉडल है मॉरिस, रोज एंड कैम्प का मॉडल है। ये मॉडल में सारी स्टेजेस वही हैं। सबसे पहले जो एनालाइज की बात कर रहे हैं तो एनालाइज इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम, एनालाइज लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एनालाइज टास्क एनालिसिस, देन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आता है डेवलप करने का। तो
that is design instructional strategy, designing the message, कंटेंट की सीक्वेंसिंग करना, ये सब डिजाइन का पार्ट है. उसके बाद डेवलप इंस्ट्रक्शन, देन इवेल्युएट. व्हाट टू इवेल्युएट? दैट इज फॉर्मेटिव इवेल्युएशन एंड समेटिव इवेल्युएशन. दैट इज इवेल्युएशन का इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करना. All these are, and then implementation. Implementation is the complete small group and then later on higher group. तो ये सारे मॉडल वही हैं जो मैंने आपके साथ में अभी तक प्रोसेस को डिस्कस किया है. देन स्टील एंड ग्लासगो मॉडल, तो ये भी एक, इसको भी थोड़ा सा, क्योंकि इससे हम रिवीजन भी कर पाएंगे कि मैंने अभी तक आपके पास में क्या किया. तो प्रॉब्लम एनालिसिस, फर्स्ट स्टेज उन्होंने क्या बनाई? प्रॉब्लम एनालिसिस. तो प्रॉब्लम एनालिसिस में टास्क एंड इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव एंड टेस्ट. On the basis of task and instructional analysis, we can design our instructional strategy. On the basis of objective and test, we can design our media. Then उसके बाद आता है instructional design. तो material development and formative evaluation development. Then उसके बाद implementation के अंदर implementation and maintenance of your design of your module, and then summative evaluation. फिर dissemination and diffusion. All these all are the same module which we have already डिस्कस, लेकिन उसकी स्टेजेस उन्होंने यही बताई थी. उसके बाद आता है एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज आई एम लेकिंग ऑफ टाइम, बट आई विल गिव यू दिस, आई विल टेक ओनली 5 मिनट्स ऑफ यू. सो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको हम देखते हैं कि सबसे पहले हमको ये सोचना चाहिए कि हु इज योर ऑडियंस. आपके ऑडियंस कौन है, आपके लर्नर्स कौन है, उनको जानना जरूरी है. So know your audience का मतलब होता है knowing the target audience, उनकी सिमिलैरिटी क्या है, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं, ये आपको जानना जरूरी होता है. उसके बाद टारगेट ऑडियंस का, a target audience consists of people who really want or need what you are offering. That means उनकी एज ग्रुप, उनका लोकेशन, उनका इंटरेस्ट, उनकी लैंग्वेज, उनकी हैबिट, ये सब आपको टारगेट ऑडियंस के बारे में पहले से पता होना चाहिए. इसके बारे में आपके assumptions, speculations बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आपका मॉड्यूल हर तरीके के लर्नर को सूट कर पाएगा. Then what are the learner, what is their entry skill, what is their prior knowledge, what is their attitude, what are their motivation level, what are their abilities, what their learning performance and group characteristics. ये सब हमको एक लर्नर के बारे में, ग्रुप के बारे में, जिनके लिए हमारी टारगेट ऑडियंस है, उनके बारे में हमको पता होना चाहिए. देन इसी के लिए एक टेलर ने बहुत अच्छा मॉडल दिया है, इसको हम बोलते हैं ARCS मॉडल, अटेंशन, रिलेवेंस, कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फेक्शन. तो अटेंशन का मतलब होता है व्हाट कैन आई डू टू कैप्चर देयर इंटरेस्ट. मैं कौन सी एक्टिविटी अपने मॉड्यूल में डालूं जिससे मेरे लर्नर का इंटरेस्ट कैप्चर में कर पाऊं. क्या मैं कोई क्विज इंसर्ट करूं, क्या मैं कोई वीडियो डालूं, क्या मैं कोई एक्टिविटी डालूं जिससे मेरे लर्नर उस मॉड्यूल को इंटरेस्ट के साथ सीखने के लिए रेडी हो सके. देन सेकंड स्टेज इज हाउ कैन आई मेंटेन देयर अटेंशन. ये भी एक जरूरी है कि हाउ कैन आई मेंटेन देयर अटेंशन थ्रू आउट माई मॉड्यूल. इसका मतलब मेरे मॉड्यूल को वो बार बार एक्सप्लोर करे, सीखे, उससे वो कैसे उसके साथ जुड़ा रहे, ये जरूरी हमको प्लान करना होता है. देन रिलेवेंस का मतलब हाउ कैन आई टाई द इंस्ट्रक्शंस टू द लर्नर्स एक्सपीरियंसेस. मतलब मैं उस अपने जो भी इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ उसको मुझे एप्लीकेशन को कैसे टाई अप करूँ, कैसे मैं लर्नर एक्सपीरियंसेस के साथ मेरे इंस्ट्रक्शंस को टाई अप करूँ जिससे मेरे लर्नर का लर्निंग जो है वो परमानेंट हो सके. दैट मीन्स जब तक आप उसका एप्लीकेशन नहीं बताएंगे तब तक लर्नर उस चीज को नहीं याद रख पाता है. तो किस तरीके के एग्जाम्पल्स आप उसमें दे सकते हैं, कोई तरीके की कोई सिंपल डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स जो उसके जिसके साथ वो फैमिलियर है, वो एग्जाम्पल्स के साथ उसको आपको हुक करना जरूरी है. सो दैट इज कॉल्ड ARC मॉडल का रिलेवेंस. देन कॉन्फिडेंस, how can I assist in building a positive expectations for success, how I'll help my learner to get successful in, मतलब उसका कॉन्फिडेंस मैं कैसे बिल्ड करूं, मैं कैसे अपने प्लानिंग के अंदर मैं कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा जब आप उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको यदि उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, आप उसको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, ऑफ कोर्स इट विल हेल्प टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस. तो इसीलिए हम जब भी मॉड्यूल डेवलप करें आपको उसमें असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट इंपॉर्टेंट है. जैसे ही वो सक्सेसफुल होता है अपने फॉर्मेटिव असेसमेंट में, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है, उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलना शुरू होता है और वो आगे पढ़ने के लिए तैयार होता है. सो दिस इज वन ऑफ द वे थ्रू विच वी कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग्स द लर्नर.
Then how can I assist? Then last is ARCS model का satisfaction. How can I assist in incurring a positive feeling about their learning accomplishment? मतलब बहुत सीधी सी बात है कि कैसे मेरा लर्नर मेरे मॉड्यूल को पढ़ने के बाद सेटिस्फाई हो. सेटिस्फाई होने का मतलब कब सेटिस्फाई होगा? जब वो हमारे मॉड्यूल से कुछ सीखेगा, उसका नॉलेज इन्हांस होगा, उसका एटीट्यूड चेंज होगा, उसके अंदर स्किल्स डेवलप होंगी, तभी वो सेटिस्फाई होगा. तो लर्नर के सेटिस्फेक्शन को हमको ध्यान में रखना जरूरी है. और इसीलिए हम जब समेटिव असेसमेंट प्लान करते हैं तो समेटिव असेसमेंट में हमको ऐसा प्लान करना है जिससे हम उसकी नॉलेज को चेक कर सकें, हम उसकी स्किल्स को भी देख सकें और हम उसको हमें क्रिएटिव इंडिविजुअल के रूप में डेवलप कर पाए. तो जैसे ही उसकी क्रिएटिविटी एनहांस होती है, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता है. सो दिस इज द मॉड्यूल वेयर इट इज सजेस्टेड दैट वी हैव टू कलेक्ट लर्नर्स डेटा. हम सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने लर्नर को कैसे जानूं. तो इंटरव्यू विद द लर्नर देमसेल्फ, रिकॉर्ड एंड सर्वे, ये फीडबैक का एक पार्ट हो सकता है. इससे आप लर्नर से संबंधित डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. सो आई होप दैट we can identify the implications of the characteristics identified in the analysis to design and instructional plan. जब भी आपको इंस्ट्रक्शनल प्लान डिजाइन करें, आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अब आइडेंटिफाई करना है, इसको अप्लाई करना है, तभी आप एक इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल सिस्टम को डिजाइन कर पाएंगे. So let us implement this instructional media design approach to provide academically rich learning environment for all. So thank you so much for patient hearing and interacting with me during the course of study. So if you have any discussions, any questions, you can raise, please. Thank you. Thank you so much, madam. Very informative session. Friends, कुछ queries है? If you have, please ask. Intermittently भी उन्होंने बहुत मतलब डिस्कशन किया है. पार्टिसिपेंट्स कुछ पूछना है? मैडम सेशन Yes, मैडम सेशन तो बहुत ही अच्छा रहा. आपने बहुत अच्छी तरह से मॉडल्स बताया, मॉडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम्स के बहुत सारे मॉडल्स हैं. तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशनल वी हैव टू अप्लाई दिस मॉडल्स, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स हैं तो अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से हमें मॉडल्स अप्लाई करना है, क्या करना है? सर मेरा एक सिंपल सा पर्पस था कि आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट मॉडल्स दिए हुए हैं, लेकिन उनकी सारी स्ट्रेटेजी को यदि आप सारे मॉडल्स को स्टडी करेंगे तो जो मैंने आपको एक स्टेप्स दी हैं, 8 या 9 स्टेजेस, वो सारे मॉडल कवर करते हैं. सीधा बात है, ये सारे जो मॉडल्स हैं अल्टीमेटली इट इज अकोमोडेटिंग ऑल दिस 9 स्टेजेस, और उन 9 स्टेजेस को कैसे सिक्वेंशियल अरेंज करना है वही मॉडल है. तो वो 9 स्टेजेस बहुत सीधा सी हैं. इसको हम और भी समराइज कर सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कभी भी कोई मॉड्यूल डिजाइन करने की कोशिश करते हैं तो आपको आपके लर्नर की नीड को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, और उसके अंदर आपको उसके साथ साथ आपको कंटेंट को भी अरेंज करना होता है. तो ये सारे मॉडल वही चीजें दिखाते हैं जो आपको मैंने इनिशियल स्टेजेस में बताई थी. ओके, थैंक यू मैम. Anybody, any questions, please? So hope that you will implement these strategies in designing your module, क्योंकि प्रीति मैडम ने आपको बोला ही है कि आपको एक इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन करना है बेस्ड ऑन व्हाट एवर यू विल लर्न मीडिया. तो मीडिया को लर्न करने के बाद आपको ये डिजाइन करना है, लेकिन आप कोई भी मीडिया यूज करें. मैंने आपको जैसे कल बताया, आप सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, आप अपना खुद का वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं, आप खुद का अपना अकाउंट खोल सकते हैं, यूट्यूब अकाउंट हो सकता है, आपका फेसबुक अकाउंट खुल सकता है. ये सारे प्लेटफॉर्म कोई भी यूज करें, लेकिन जो डिजाइनिंग है, कंटेंट डिजाइनिंग की जो मॉड्यूल है, वही स्टेजेस आपको फॉलो करना होगी. तो यू कैन डिजाइन एन इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल सिस्टम. सो थैंक यू सो मच. Thank you so much, ma'am. On behalf of UGC HRDC Nagpur and from all the participants, I extend my thanks to you, Dr. Rajeshri Vaishnav, madam, for both the sessions, yesterday's session and today's session as well, and for accepting our invitation and enlightening the participants. Thank you so much, madam. Thank you, ma'am. Thank you, friends. Now we will take lunch break, and next session will start at 1 o'clock. Thank you, madam. Thank you all of you. Thank you, ma'am.